No. Yes, बेटा बोलो what happened? चलो try 31st. No. With narration. Effect on profits मैं बता रहा हूँ. Guys, listen. आपको सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्रीज करना है विद नरेशन. इफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स आई एक्सप्लेन. प्लीज डू इट फास्ट. कुछ दिया है कितना आपको नॉर्मल. चलो ध्यान से करो. 31 बराबर. Please be quick. 31. Guys, 10 minutes, be quick. Which one? नहीं, इसके लिए गुड्स से लिखो. गुड्स अकाउंट बोला है तो राइट गुड्स. डोंट यूज परचेज. गुड्स के लिए राइट गुड्स. डायरिया गाइस आर्यन बराबर बात करते. तत्व डायरिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा. गाड़ी छूट जाएगा. बराबर पास चलेगा. सीधा रेक्टिफाइड बट विद नरेशन. चलेगा. जिसमें डिफिकल्ट लग रहा है उसमें लिखो. डू इट. इफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स बताता हूँ. सेल्स रिटर्न नहीं. गुड्स मतलब गुड्स अकाउंट यूज करो. क्वेश्चन में दिया है ना, अदरवाइज परचेज.
सस्पेंस बना लो। सस्पेंस एक्चुअली है ना, क्लियरली स्पेसिफाई, इसमें नहीं बना तो चलेगा। Don't make suspense, it's okay. Cash flow डेबिट बड़ा कैश वाला तो कैश बुक में ही आएगा। कैश इज राइट।
Okay, now. तो सर कैसे आएंगे? Hello, check first. देखो first one, please focus now, please don't talk, else unnecessary delay over lecture. Return inward was total short, so it is sales return to suspense. Okay? 100 rupees. Then 510 being cash paid to Hirachand, debited to Ramchand as 5010. So correct Hirachand to cash 510. Wrong आएगा Ramchand dash to cash. Reverse cash to dash to Ramchand. Rectified Hirachand 510 to Ramchand 5010 to suspense 800. Got it? 1500 furniture purchase debited to goods. Correct up. Furniture to cash, wrong goods to cash, reverse cash to goods, rectified furniture to goods. Got it? Error of principle. Now rectified. Purchase made of 500 posted to purchase account as 50. Correct up. Purchase to cash 500. Wrong. Purchase dash to cash. Reverse cash to dash to purchase. Rectified purchase to suspense 450. Purchase to suspense 450. Error of commission. Now rectified. Then wages paid for erection of machine 700 debited to wages. Correct the machine to cash. Wrong here. Wages to cash. Reverse cash to wages. Rectified machine to wages. Error of principle. Now rectified. Goods of proprietor use debited to purchase. Correct the drawings to cash. Wrong the purchase to cash. Reverse cash to purchase. Rectified drawings to purchase. Error of principle. Now rectified. Sum of 1000 written over debris not posted to debris. Correct is debris to machine. Wrong है dash to machine. Reverse machine to dash. Rectified debris to suspense. Error of omission. Now rectified. 100 received from Raghu debited to Sundar. Correct था cash to Raghu. Wrong. Cash Sundar to dash. Reverse dash to Sundar to cash. Rectified suspense to Raghu to Sundar. 200, 100, 100. Error of commission now rectified. Is it clear? 1150 received from Radhamohan debited to his account. Correct था cash to Radhamohan 1150. Wrong आएगा cash Radhamohan to dash. Even dash to Radhamohan to cash. And rectified is suspense to Radhamohan to 300. Suspend to Radhamohan to 300. Purchase return not recorded. Correct is Sri Hari Kishan to purchase return. Wrong है ही नहीं, reverse है ही नहीं. Rectified is also Sri Hari Kishan to purchase return. मिला? Suspense account नहीं बनाना चलेगा. हाँ. Drawings वाला. देखो. Good drawing वाला purchase of proprietor. Correct the drawings to cash. Wrong the purchase to cash 1000. Withdrawn नहीं है, purchase है. पैसा गया. गाला. Withdrawn नहीं है. Goods purchase है. हाँ, तो drawings to cash. Correct is drawings to
cash, wrong is purchase to cash, reverse cash to purchase, rectified wrong to purchase. यहाँ तक क्लियर है? अभी सुनो, इफेक्ट ऑफ रेक्टिफाइड एंट्रीज ऑन प्रॉफिट्स, ध्यान देना यहाँ पे, प्लीज फोकस. इफेक्ट ऑफ रेक्टिफाइड एंट्रीज ऑन प्रॉफिट्स, देखो वही पूछा है. फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑन द पीएनएल ऑफ द बिजनेस. दिख रहा है? बहुत सिंपल क्राइटेरिया, बहुत सिंपल क्राइटेरिया है. चेक योर रेक्टिफाइड एंट्रीज, चेक योर रेक्टिफाइड एंट्रीज. मेरे को बोलो प्रॉफिट किस चीज से इफेक्ट होता है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंस. इनकम एक्सपेंस या तो पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं है. इनकम एक्सपेंस सिंपल रूल है, सुनना ध्यान से. एक्सपेंस डेबिट हुआ तो एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट घटा. क्या बोला? एक्सपेंस अगर रेक्टिफाइड एंट्री में डेबिट हुआ तो एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट घटा. हाँ, एक्सपेंस अगर क्रेडिट हुआ तो घटा. एक्सपेंस अगर क्रेडिट हुआ तो एक्सपेंस घटा मतलब प्रॉफिट बढ़ा. दैट्स अबाउट एक्सपेंस. इनकम, इनकम अगर क्रेडिट हुई रेक्टिफाइड एंट्री में तो बढ़ी मतलब प्रॉफिट बढ़ा. बट इनकम अगर डेबिट हुई तो इनकम घटी मतलब प्रॉफिट भी घटा. अब और एक शॉर्ट रूल बना दो इसको, बहुत सिंपल है. एक्सपेंस या इनकम कुछ भी डेबिट हुआ ना तो प्रॉफिट घटेगा, और एक्सपेंस या इनकम कुछ भी क्रेडिट हुआ ना तो प्रॉफिट बढ़ेगा. तो बेसिकली नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एसेट लायबिलिटी को मालूम बोली. नॉमिनल अकाउंट अगर डेबिट हुआ ना तो प्रॉफिट घटेगा, और नॉमिनल अकाउंट अगर क्रेडिट हुआ तो प्रॉफिट बढ़ेगा. देखो मेरे को रेक्टिफाइड एंट्री मतलब पहला वाले का क्या है? सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस. अभी गाइस सेल्स रिटर्न इज नॉमिनल, डेबिट हुआ प्रॉफिट घटेगा तो प्रॉफिट्स विल डिक्रीज बाय हाउ मच? हाँ कितना है? 100 रुपया. प्रॉफिट्स विल डिक्रीज बाय 100. अच्छा, सस्पेंस का प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं, वो आर्टिफिशियल अकाउंट है, ना रियल ना नॉमिनल ना पर्सनल. सुना सुना. अभी आउट ऑफ 10 मार्क्स 6 से 7 मार्क एटलीस्ट का, 3 से 4 मार्क इसका. हाँ, और लास्ट में नेट वो अलग था, वो एरर्स का इफेक्ट था, उसमें भी रेटिंग था, इसमें रेटिंग. अच्छा, दूसरा वाला एंट्री बोलो. विराजन रामचंद किया है. इफेक्ट नो इफेक्ट. तीसरा क्या है? फर्नीचर टू गुड्स. दिख रहा है? नो इफेक्ट. गुड्स मतलब स्टॉक अकाउंट है, वहां पे परचेज नहीं हुआ. नो इफेक्ट, क्योंकि गुड्स अकाउंट इज स्टॉक अकाउंट. कुछ नहीं दिया तो परचेज लो तो नॉमिनल, बट गुड्स बोला है तो फिर गुड्स, डोंट मेक परचेज. ओके, समझा? गुड्स का गुड्स ले लेगा. देन गुड्स इज रियल स्टॉक. परचेज एक्सपेंसिव वाला. व्हाट इज द फोर्थ एंट्री? पक्का प्रॉफिट में डिक्रीज. सबको समझा? प्रॉफिट्स विल डिक्रीज बाय हाउ मच? 450. बराबर है. फिफ्थ वाला क्या है? अच्छा, मशीन से फर्क पड़ेगा. बेसिक क्रेडिट हुआ तो प्रॉफिट्स विल इंक्रीज बाय हाउ मच? 700. सिक्स्थ वन. Very drawings affect the profit. No, but with purchase, yes. बढ़ेगा घटेगा? इंक्रीज और डिक्रीज?
7 minute effect. 7. Profits will decrease or increase? Decrease by 1,000. 8, 9, 10. लॉजिक समझा सबको? नॉमिनल अकाउंट डेबिट हुआ तो घटेगा, क्रेडिट हुआ तो रियल पर्सनल एसेट एमडी को लेने देना। ये क्या है? प्रॉफिट्स में इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज बाय, अच्छा फाइनल आंसर डिक्रीज माइनस करो, इंक्रीज ऐड करो। डिक्रीज माइनस इंक्रीज ऐड, नेट बताओ। बढ़ रहा है घट रहा है? So net increase in profit. Net increase in profit. समझा? इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट समझ रहे हैं? वेट, नहीं ट्रायल बैलेंस में नहीं, इसका करने, इसका नेट इंक्रीज 1130 होमवर्क के लिए। टेबल सम नंबर 27 नहीं किया है। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है 27 सम। मस्त सम है, 10 मिनट में करना है आफ्टर फाइनल अकाउंट से और सस्पेंस अकाउंट भी बनाने का। ओके, होमवर्क 27 सम। वन सम लेके आईसीआई का पेपर में आया हुआ सम है वो 27 इधर से करना।